I'm very much happy to provide this session because I believe that many nurses in the market, they do not know what questions should be asked, uh, what things should be verified with every agency or agent before trusting them with your hard-earned money. So this I hope will help you guys. I'm just sharing my screen. Just allow me a moment. I'll just start. So first question is overall timeline. So आपके हिसाब से आप लोग obviously session attend कर रहे हो. You guys must or should have an idea कि what are the timelines being given in the market. Anybody has any timeline जो आपके agent या employer ने या फिर कोई company ने आपको बताई है? Anybody is mentioned any timeline to you so far? Can you tell me? Sir, 4 to 6 months. 4 to 6 months for you to go to Germany, right? Yes, sir. Okay. Anybody else? Anybody else has heard any other timeline? 3 to 5 months, sir. Yes, sir, same here. How much? Sorry. Yes, sir, same here, sir. 4 to 6 months. 4 to 6 months only. Everybody's heard 4 to 6 months. That's a timeline. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, so I'll tell you a realistic timeline. So 4 to 6 months may it's not possible for you to. Hello. Yeah. Sir, 4 to 6 months when we pass out from B2 level, right? Yeah, so I'm explaining the timelines now. So 4 to 6 months, it's not possible for you to complete the entire process for German training for placement, right? So it requires B2 level of German training requires 6 months. अगर कोई आपको बोल रहा है, if somebody is saying 6 months, then it is possible only if you are learning German 7 days a week and you are not working at all. It is only possible then. So, for example, rigorously, you forget any festival, you forget any family, you forget everybody else who is present in your life. Then 6 months B2 German training is possible. But realistically, it takes 8 months because ultimately it's a language which you are learning. It's not any other subject. It's not a subject which you can cram. It is a language. So आपको बोलनी आनी चाहिए एक new language, right? The idea is not only to understand, its idea is to speak another language. So that requires time. So realistically, it will take you 8 months to learn the new language. 8 to 10 months is what it takes. So you have 5 days of classes, ideally 2 days to revise yourself. So 8 to 10 months ideally is the timeline. With that, your German language training will be completed, right? Post that, it will take another 2 months for you to complete your visa formalities. There might be some delays in getting examination dates for B2. Then ideally, your visa appointment can also take some time. But the entire process will take anywhere between 10 to 12 months. So that is approximately 1 year is a realistic timeline. Sir, your agency is registered by the MENAE, Ministry of Yes. External Affairs. Yes, The but license- yes. So we will provide you the license number also. Next, Shohan. So I think the team will get back to you with the details, but this webinar we are conducting only to provide information, right? So Okay. I will request everybody who has questions regarding us to reach out to your respective box or the WhatsApp number, which I will provide at the end of this presentation, right? Hello, sir. Yes, Hello, Pawan? school. Yes. Sir, it should be completed on B1, B2, 8 months. 8 months. 8 months is the timeline. Realistically, 8 to 10 months it can also take, depending on how fast you're able to cope up in the class. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Yeah. Yeah. So the second point which needs to be asked for every agent or every other company is, do you provide a meeting or an interview with the employer? So this will help you in two things. This will help you to assess or trust whether the company has a genuine connection or a genuine employer waiting for you in Germany or not, right? So authenticity will get tested. Plus, that interview will give you confidence that yes, there is somebody who is giving you a real, real person out there who you are going to go to in Germany or in Austria. I'll come to point number 3 now. So this is, I think, one of the most important points. There are companies in the market who do not give conditional offer letters first hand. So they will ask you, आप ट्रेनिंग शुरू करो अपनी, आप B1 B2 तक पढ़ो, फिर आपको हम इंटरव्यू कराएंगे. However, there are other companies who are providing you an opportunity to give an interview with an employer and then giving you a conditional offer letter if you clear that interview. But conditional offer letter मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका confirmation हो गया है. It's important to see कि कौन सी company का letterhead पे issue हुआ है conditional offer letter. Is it from the German company or is it actually from the company जिसमें आपने apply करा या फिर आपके agent की company है वो?
वो आपको चेक करना जरूरी है, राइट? एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? Sir, not completed after B1, B2 6 months. No, after completing B1, B2, your timeline will be either 2 months or 4 months maximum. If you've not completed B1, B2, then your timeline will be 1 year. If you have to start German training. Yes, sir. If you started from 6 to 8 months B1, B2 now. Yes, so B2, B1, B2, ideally you should complete in 8 to 10 months. That is the timeline. Okay, okay. Coming back to conditional offer letter letterhead. So letterhead of the conditional offer letter, it is extremely important. Whether it is from the German company or a company based in India. Indian company, I can also issue a conditional offer letter at the letterhead of Jets and Jobs, but that will mean nothing. However, a company sitting in Germany who's actually placing nurses, that will mean a lot, and that will help you gain trust in a certain agent or a company, right? So just ensure that the letterhead is of a German-based company. Yeah? Next important point, I think, is your deposit refundable? So a lot of times people give registration fees, and that registration fees might not be refundable. So check your receipt, ask you for a receipt if you're not given a receipt, and check what is written in that receipt also. उस पर लिखा क्या, उस पर लिखा भी है कि आपने जो पैसे दिए हैं वो रिफंडेबल हैं भी या नहीं है. So always ask for official paperwork. Why is deposit money refundable? So deposit money is refundable because in Germany, the government of Germany needs so many nurses. Actually, Germany needs so many nurses that the German government has created a policy which is known as a fair recruitment policy. So under that policy, they require that any nurse who is coming to Germany for the benefit of their country, they need not pay any money for that purpose. For example, even if they have paid money for learning German, that money should be refunded back to them. So ideally, they want Germany's companies to take on all responsibilities for your cost. So whatever cost or deposit fee which you are giving, so there are free refundable deposit programs going on in the market, which allows you to give your money back to you once you reach Germany. So that money, for example, if you're paying 50,000, you're paying 1 lakh rupees as a deposit fee. So that money will get refunded back to you once you reach Germany. Okay, got it. What is the question? सर टोटली रिफंड तो ओनली प्रोसेसिंग के बाद है ना कंप्लीट? हाँ, कंप्लीट प्रोसेसिंग के बाद ही रिफंड होता है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना कि कई सारे लोग मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई सर्विस ली है, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग ली है, तो आप फ्री में पढ़ लेंगे उस चीज को, तो जो कंपनीज इस प्रोग्राम को रन कर रही है उनको नुकसान होगा, बिकॉज अल्टीमेटली उनको पैसे तो वापस ही करने हैं आपको, राइट? अगर आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप जर्मनी पहुंच जाते हैं, तो आपका मनी रिफंडेबल होता है. तो यहाँ तो A1 B1 B2 ओनली, वहां जाके C1 C2 होता है? नहीं, वहां पे जाके C1 C2 की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको B2 कंप्लीट करना है फॉर यू टू वर्क एज अ नर्स इन जर्मनी. ओनली 2 प्रोसेस, ओनली 4 लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपके पास कोई कंपनी है या फिर कोई एजेंट है वो डिपॉजिट मांग रहा है आपसे, तो ये जरूर पता कर लेना कि डिपॉजिट का जो फी है, अगर वो 10,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, तो इतना लो डिपॉजिट फी क्यों है, वो भी आपके लिए रेड फ्लैग होना चाहिए. आइडली आजकल के जमाने में दिल्ली बॉम्बे की रिटर्न फ्लाइट नहीं आती 10,000 रुपए में. तो आपको जर्मनी जाने का प्रोसेस कंप्लीट, इंक्लूडिंग योर जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग, योर वीजा डॉक्यूमेंटेशन, योर गाइडेंस, योर पोस्ट, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट असिस्टेंस, ये सब चीजें कोई कंपनी कैसे देगा आपको 10,000 में? तो आइडियली आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि 10,000 तो दे रहे हो आप, बट उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछने के लिए, राइट? तो अगर आपको लगे कि डिपॉजिट फी लो है, तो आप जाइए उस कंपनी के ऑफिस में, उसके बारे में रिसर्च करिए कि क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो. आस्क ऑल द क्वेश्चन जो इस वेबिनार में आप सीखेंगे, एंड देन टेक अ कॉल. Any other question on this? If the deposit fee is too low, it should be a red flag. So hence ask more questions. What all you are providing? Are you providing German language training? Are you providing visa assistance? What will happen once we reach Germany? Will you provide us assistance after that also or not? So also अगर deposit fee low है या फिर registration amount low है, तो it can be cases we have come across nurses जिनको उनके बिना बताए उनके नाम पे लोन इशू करा गया था. So they did not know that they have to pay EMIs. They did not know that उनके नाम पे लोन लिया जा रहा है. So कई केसेस में इसमें आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि आप किसी लोन के लिए गलती से अप्लाई तो नहीं कर रहे बिना अपनी नॉलेज के. बिकॉज आइडियली 10,000 या 20,000 में आपको जर्मनी भेजने तक का खर्चा कोई कंपनी पूरा नहीं कर सकती है. So you should be very careful and see and again research about the company, research well about the company, what they are providing you,
and do not fall for scams, do not fall for loans unnecessarily unless it is required from your end. अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन किसी के फोर्सफुली बोलने पे मत करिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर B1 लैंग्वेज के लिए कितना पे लगता है, जैसे एक्स्ट्रा, जैसे मतलब इसका फॉर्म फीस थोड़ी होता है गोइते का सर? सॉरी, नहीं एग्जाम फी होता है अगर आप B1 एग्जाम देने हैं। B1 का अगर अपन एग्जाम देते हैं सर, तो उसका एक्स्ट्रा गोइते के करते हैं तो उसका एग्जाम पे थोड़ी होता है अलग। जैसे B2 के लिए अपन चार्ज होता है, जैसे टेल का होता है तो अराउंड 15 से 20 के बीच में, इसका 20 के 22 के बीच में गोइते का, तो इससे कुछ होता है क्या सर? हाँ, मतलब अगर आपको अगर B2 देना है तो B2 का चार्ज तो आपने ठीक बताया कि 15 से 20 या 25,000 रुपए तक का होता है। अगर B1 भी देना है आपको तो उसका भी चार्ज होता है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज है उसका सर? हाँ जी, बट लेकिन जरूरत नहीं है आपको देने की, आपको एक ही बार एग्जाम देने की जरूरत है। नहीं सर ये भी फंडेबल होता है। सॉरी सर ये भी फंडेबल होता है। वो मैं आऊंगा उस बात पे आऊंगा। लेकिन सर B1 के बाद तो प्रोसेसिंग चालू हो जाती है ना? हाँ, प्रोसेसिंग चालू हो जाती है, लेकिन आपका इंटरव्यू चालू होते हैं B1 के बाद विद द हॉस्पिटल। जहाँ पे हॉस्पिटल में आप जाएंगे, जिस हॉस्पिटल में, उनके साथ इंटरव्यू चालू हो जाते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो जाता है B1 के पे आने के बाद। सर B1 के बाद ऑनलाइन इंटरव्यू होता है सर? B1 के बाद ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं विद द रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल। आपको ये सारी डिटेल्स आपको सेपरेटली हमारे टीम मेंबर्स आपको समझा देंगे। लेट मी कंप्लीट दिस वेबिनार, एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस, आई एम श्योर बाकी लोग भी हैं जिनको समझना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए। लेट मी कंप्लीट दिस वंस, आई विल गेट बैक टू यू विद ऑल द क्वेश्चंस। जो भी आपके डाउट्स हैं वो एंड ऑफ द वेबिनार में आई विल काइंड ऑफ क्लियर देम। सो अगला सवाल ये कि अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देयर आर एजेंसीज जहाँ पे आपको 1,50,000 2 लाख रुपीज चार्ज किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम वो चार्ज करने के बाद आपके ही पैसों से आपको स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। सो उसका पॉइंट क्या है, ये आपको पूछना जरूरी है कि आप ज्यादा अमाउंट देके कहीं उसी का तो स्टाइपेंड नहीं ले रहे हो। तो डू नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप एनीबडी हैज सीन खोसला मूवी, एनी वन ऑफ यू, एनीबडी, किसी ने देखी है मूवी खोसला? प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर होती है। आज देख लेंगे सर। आज देख लोगे, ठीक है। तो उसमें ना एक मूवी में डायलॉग बोलता है वो कि आप पार्टी हैं या ब्रोकर, क्योंकि वो एक रियल एस्टेट एजेंट से बात कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे जानना जरूरी है कि आप मिडिलमैन हैं या आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ टाई अप है आपकी कंपनी का, राइट? आप खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आपने ट्रेनिंग किसी और इंस्टीट्यूट को दे रखी है जो हमें ट्रेनिंग देता है। सो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी से या किसी भी एजेंट से, कि आप खुद आपके टाई अप्स हैं या फिर किसी और कंपनी के टाई अप्स हैं। अगर उसके खुद के टाई अप्स नहीं है तो आइडियली आपसे ज्यादा पैसे देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, राइट? तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। हमेशा पूछिए कि इंस्टीट्यूट, आपका ही इंस्टीट्यूट जर्मन ट्रेनिंग दे रहा है। बिकॉज एक इंस्टीट्यूट अगर प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो हो सकता है कि जर्मन ट्रेनिंग आपको कोई और इंस्टीट्यूट दे रहा हो। तो आपको वो भी इंश्योर करना है कि जर्मन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कितना स्टैंडिंग है, उसके ट्रेनर्स की क्वालिटी क्या है, तभी आप उस इंस्टीट्यूट को ट्रस्ट करिएगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, जर्मन सीखना इज नॉट इजी, इट ओनली गेट्स इजी इफ यू गेट द राइट टीचर और ट्रेनर। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस पे? सर कितनी तक हो सकती है लैंग्वेज? कितने तक मतलब एज इन कॉस्टिंग में आप कह रहे हैं? जी सर। हाँ जी, कॉस्टिंग के आगे एज आई सेड कि हमारे जो इंस्टीट्यूट की कॉस्टिंग है वो आपको इस वेबिनार में आई वुड नॉट टेल यू। वो हमारे स्टॉक और जो भी आपको नंबर मैं दूंगा लास्ट स्लाइड पे, उस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो सर जो आपने बताया कि इतनी फीस जमा करानी है, उसमें ये नहीं आएगा क्या, ये लैंग्वेज सीखने का? नहीं, तो मैंने कहा कि फीस में कई एजेंट्स ऐसे हैं मार्केट में जो फीस आपसे पूछ रहे हैं, तो उनसे क्या क्या सवाल पूछें आप, ये जरूरी है। आई डिड नॉट से कि हम इतना चार्ज करते हैं। मैं कह रहा हूँ मार्केट में कई लोग 10,000 भी करते हैं, कई लोग 1,50,000 भी करते हैं, कई लोग 2 लाख भी करते हैं। बट लेकिन ट्रेनिंग सर, जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग आई गेस फ्री होती है कोई भी एजेंसी में अगर हम बात करते हैं तो? हाँ, अगर आप डिपॉजिट देते हैं तो उसमें फ्री होती है, करेक्ट। तो सिक्योरिटी मनी में ही हो जाता है ना सर? हाँ जी, सिक्योरिटी मनी में होता है, राइट। सर वीजा भी आप देते हो या हमें अलग से लेना पड़ता है? वीजा फी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड ही उसी बारे में है। ओके। सो हिडन चार्जेस पे आते हैं अब, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि आपको एक कोई भी कंपनी बोलेगी कि 10,000 डिपॉजिट फी है, 25,000 डिपॉजिट फी, 50 फी है, 1 लाख फी है, जो भी फीस है उसका हिडन ब्रेकअप तो मांग लो कि क्या क्या इंक्लूडेड है उसमें। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वीजा फी इंक्लूडेड है उसमें या नहीं है, राइट? तो कोई भी कंपनी को आप पूछो कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपके क्या होता है कि इंडिया में हमारे डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होते हैं या फिर लोकल लैंग्वेज में होते हैं हमारे, करेक्ट?
तो वो डॉक्यूमेंटेशन हमें जर्मन में ट्रांसलेट कराने होते हैं। तो इसके चार्जेस कौन भरता है, ये भी पूछना बहुत जरूरी है। कोई कंसल्टेशन फीस तो नहीं आप चार्ज करोगे आफ्टर चार्जिंग डिपॉजिट फी। फ्लाइट के एक्सपेंसेस कौन देगा, आपके जर्मनी जाने की फ्लाइट के एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, क्या वो रिफंडेबल है भी या नहीं है। एग्जाम फी जो होती है, कोई थे कि किसी ने बताया कि वो टेल की 15 से 20,000 या 25,000 रुपए है, उसकी फीस कौन देगा और क्या वो रिफंडेबल है भी या नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आपको पूछनी बहुत जरूरी है। वीजा फी somebody asked me कि अगर वीजा फी कौन देगा, वीजा फी अगर दे रही है तो रिफंडेबल है भी या नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन यस सर। सर अभी आपने जैसे बोला कि जो लैंग्वेज का चार्ज है, मतलब वही थे एग्जाम फीस है ना सर। हाँ, तो वो क्या सर हमें ही पे करनी होती है या उसी पैकेज के अंदर इंक्लूड होती है, जैसे अराउंड इसका 75,000 वो बताया गया है उसके अंडर में। हाँ जी, सो यूजुअली क्या होता है कि 75,000 की बियॉन्ड होती है फीस, बट लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो वो आपको Yes. रिफंड हो जाती है एम्प्लॉयर के एंड से। जब आप जर्मनी पहुंच जाएंगे तो आप एम्प्लॉयर को रिसीट दिखाएंगे उस एग्जामिनेशन की जो आपसे Yes. दी गई होते से, और वो एम्प्लॉयर आपको रिफंड करता है। और ये सारी डिटेल्स आपको लिख के दी जाती है। सो इंश्योर करिए कि हर चीज राइटिंग में मिल रही है आपको, तो सर वहाँ पे स्टाम्प पेपर पे राइटिंग पे या फिर कंपनी के लेटर हेड पे मिल रही है आपको। और स्टैम्प पेपर पे भी कई डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स आपसे साइन होते हैं हमारे बीच में। ओके सर, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी प्लेसमेंट कब होगी, ये आपको पूछना बहुत जरूरी है। B1 लेवल पे हो रही है, B2 लेवल पे हो रही है, कौन से लेवल पे हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। देयर आर इंस्टीट्यूट्स हु विल से कि B1 पे आपको प्लेस करा के भेज देंगे वहां पे, लेकिन एट द सेम टाइम क्या B1 इज सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू वर्क एज अ नर्स इन जर्मनी? द आंसर इज नो। आपको B2 लेवल जर्मन यहीं से करके जानी चाहिए। दैट इज समथिंग व्हिच वी रिकमेंड आइडियली, बिकॉज आप वहां पे जाके एक नए देश में जाके आप डायरेक्टली एज अ नर्स काम करना शुरू कर रहे हैं। सो यू नीड टू नो देयर लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, कई सारे नर्सेज यहाँ पे इस वेबिनार में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, आपको पता है कितना हाई प्रेशर जॉब है, राइट? अगर आपको अपनी पेशेंट की भाषा समझ में ना आए तो क्या आप उसको ट्रीट कर पाओगे ढंग से, उसको ढंग से? तो एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको एक प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ जर्मन आनी चाहिए, आपको बोलनी आनी चाहिए, which for which B2 level is required. So study hard, study till B2 here only. आप एक नए देश में भी जा रहे हैं वहाँ पे, अगर आप B1 पे चले भी गए तो B2 आपके लिए वहाँ पे सीखना और अलॉन्ग साइड नए शहर को अडेप्ट करना प्लस नया काम को सीखना, तीनों चीजें बहुत हेवी पड़ जाती हैं, तो आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे प्रोसेस वहाँ जाके भी। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, अगर यहाँ से B1 करके जाएं और वहाँ पे B2 क्लियर ना हो हमारी, हाँ, तो देन रिटर्न इंडिया। तो उसके बाद यूजुअली क्या होता है कि हमारे साथ जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, हम तो B2 पे ही भेजते हैं, हम B1 पे नहीं भेजते। तो एंड देयर आर पॉलिसीज एंड इन प्लेसेस, अगर कहीं और आपको कंपनी में किसी ने बोला कि B1 पे भेज रहे हैं और B2 ना हो पाए आपका वहाँ पे, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क और गेट प्रमोटेड टू रिकग्नाइज नर्स वहाँ पे। इंडिया में तो आप नर्स रिकग्नाइज हो, आपने BSc या GNM नर्सिंग करी होगी, आपने नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन ले ली, तो आप रिकग्नाइज नर्स बन गए हो इंडिया में। बट एट द सेम टाइम जर्मनी में जाने पे भी आपको रिकग्निशन लेनी पड़ती है, वहाँ पे नर्सिंग काउंसिल से अप्लाई करना पड़ता है, तो वो नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे अगर आपके पास B2 नहीं है। तो B2 इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट वहाँ पे टू गेट दैट रिकग्निशन कि आप रजिस्टर्ड नर्स हो जर्मनी में, वो नहीं मिलेगा आपको। तो आपकी जो पे स्केल है वो लिमिट हो जाएगी वहाँ पे। Hello. हेलो, What kind of job roles are you offered in Germany? Hospital or hospitality, I mean allied care or both? Your home so care. there are three segments or 3 tiers of organizations in Germany. One is a university hospital, other is a hospital, and the third one is a senior care home. With our employers, you get a chance to get placed either in university hospital or in hospitals. In case you fail in 5 interviews, then you are placed in a senior care home, but you get chances in university hospitals and in hospitals first. So B1 or B2, I hope that is very clear. Ongoing support, what does this mean? So this means that whether you will get support from the same company after you get placed in Germany. ऐसा तो नहीं है कि इंडिया से आपको भेज दिया देन उसके बाद कोई लिंक नहीं है, आपको कुछ सपोर्ट चाहिए वहाँ पे, यू आर गोइंग टू न्यू कंट्री ऑल टुगेदर, सो विल देयर बी एनीबॉडी हु विल टेक केयर ऑफ यू और नॉट, राइट? आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, फ्रॉम द कंपनी. एम्प्लॉयर एंगेजमेंट स्टेज, सो एट व्हाट स्टेज द एम्प्लॉयर इज एंगेजिंग विद यू? इंटरव्यू इनिशियली हो गया, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर कब आपसे बात करेगा, whether it is at every stage, every level. For example, आपने A1 क्लियर कर लिया, A2 क्लियर कर लिया, तब एम्प्लॉयर बात करेगा आपसे टू चेक कि आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है या नहीं है, कितना इन्वॉल्वमेंट है एम्प्लॉयर का. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट विल गिव यू गाइडेंस कि whether you are actually assured of getting placed or not. That will give you confidence also on your German levels. So ask these questions, right?
तो सर Sorry? मतलब ये अपनी एजेंसी सारा कुछ प्रोवाइड करती है, ये आपने location? हमारी फर्म है विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, बट द ओनली क्वेश्चन व्हिच यू नीड टू आस्क इज, अगर आपको ये जितने भी मैंने सवाल पूछे हैं आप सारे सवाल पूछ सकते हैं। आई हैव गिवन यू व्हाट्सएप नंबर हियर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद पूछो क्वेश्चंस, आप वेरीफाई करो डिटेल्स, आप डिसाइड करो आप चाहे हमारे साथ कर रहे हो या किसी और एजेंसी के साथ कर रहे हो, कंपनी के साथ कर रहे हो, बट क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा जो मैंने आज वेबिनार में दिखाए हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करना, कितने भी छोटे रेड फ्लैग्स हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, सो गो विद योर इंट्यूशन। हेलो सर। हाँ जी, यस सर ये नंबर कितने टाइम तक लगा सकते हैं, वैलिड रहता है? आप ये नंबर व्हाट्सएप पे कभी भी आप 24/7 एक्टिव है, व्हाट्सएप पे हाई भेज के आप बात कर सकते हैं इस पे। ओके सर। सर इस पे नॉर्मल कॉलिंग नहीं होगी? इस पे नॉर्मल कॉलिंग नहीं होगी, या नॉर्मल कॉलिंग कर भी सकते हैं, आई थिंक समबडी विल आस्क और आंसर दैट। आप लेकिन आपके पास रिस्पेक्टिव स्पॉक का नंबर है आपके पास, जिससे आपने अप्लाई करा, इसको आप जिससे आपको लिंक मिला होगा, आपको उनके नंबर है आपके पास? जी सर है ना, तो उनसे आप रीच आउट कर सकते हैं फॉर ऑल डिटेल्स। अभी कोई क्वेश्चन है व्हिच आई फॉरगॉट टू आंसर, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। सर अपनी क्लास डेली कितने घंटे की लगेगी? So daily classes ideally should be from Monday to Friday. शुरू के levels में it is from 2.5 hours, but as your level increases B1 B2 पे जाके the classes की जो duration है that increases to 3 hours. But सिर्फ classes ही नहीं होती हैं, you need to practice also. So at the same time जब मैंने कहा कि 2 घंटे की क्लास है तो 1.5 hour के आपको practice भी करनी है, assignments भी मिलते हैं आपको करने के लिए। And same But sir, goes जैसे for आपने B1 B2। सर शुरुआत में बताया था कि अगर आप पूरा टाइम डिवोट करते हो तो आप 4 से 6 महीने में सीख सकते हो ना? नहीं, सो 6 महीने में सर सीखना पॉसिबल है अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हो कोई लैंग्वेज को और आप काम नहीं कर रहे हो, तो तब जाके B2 लेवल आप करेंगे। सो काम आपको छोड़ना पड़ेगा अगर 6 महीने में करना है, वरना पॉसिबल ही नहीं है B2 पर। नहीं सर, फिर क्लास फिर क्या ज्यादा लगेगी, पूरे वीक क्लास लगेगी? पूरे हफ्ते 7 days, मतलब व्हिच इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू डू। सो आइडियली आपको 8 months लगेंगे टू कंप्लीट B2। ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर वहाँ का जो फ्लाइट का खर्चा होता है वो सब हॉस्पिटल वाले ही देते हैं सर, B2 क्लियर होने के बाद? आपकी सैलरी में से कटता है वो, आपको सब्सिडाइज रेट पे आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं वहाँ पे। सर वो बता रहे थे कि एजेंट्स जो भी होते हैं, मतलब कि वहाँ आप जाते हो तो वो फ्लाइट वाले जो हॉस्पिटल्स में होते हैं वही लोग आपकी फ्लाइट का वीजा का सब लोग वही टिकट मतलब वही करते हैं सब कुछ। हाँ, सो आप क्वेश्चन पूछिए मतलब उनसे कि कौन से कितने अमाउंट मिलता है, क्या अमाउंट मिलता है, आपको आंसर अकॉर्डिंगली देंगे वो। इवन इफ यू आस्क आवर टीम मेंबर्स तो दे विल गिव यू एंटायर ब्रेकअप कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका टैक्स कितना कटेगा, आपको अकोमोडेशन में कितना कटेगा, आपको खाने का खर्चा क्या होगा, सो एंटायर ब्रेकअप मिलेगा आपको। अकोमोडेशन और ओरिएंटेशन एजेंसी प्रोवाइड करती है जैसे जाने के बाद में, या फिर हमें खुद से करना पड़ता है? आपकी खुद की सैलरी में से करता है। नहीं, प्रोवाइड नहीं कराता, मतलब अकोमोडेशन वहाँ पे रूम्स प्रोवाइड आपको सब्सिडाइज रेट पे आपको हेल्प मिलती है टू आइडेंटिफाई एन अपार्टमेंट फॉर यू। अगर आपको वो अपार्टमेंट पसंद नहीं आता तो पोस्ट दैट यू कैन चेंज एन अपार्टमेंट। सर विदिन 1 month हमारी प्लेसमेंट वहाँ पे हो जाती है? विदिन 1 year अगर आपने जर्मन सीख ली है, आप कौन से लेवल पे, वो डिपेंड करता है कि कब प्लेसमेंट होगी आपकी। आपको तो जर्मन लेवल B2 तक पढ़ने के लिए 8 से 10 महीने, ओके, उसके बाद 2 महीने और लगेंगे, 2 महीने तक और टाइम लग सकता है टू गेट योर प्लेसमेंट वीजा, टिकट्स सब कुछ करने में। आफ्टर वी फ्लाई टू जर्मनी एंड लैंडेड, सो उसके बाद विदिन 1 month या फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा मतलब? Sorry, I didn't get your question. सर आफ्टर यू फ्लाई टू जर्मनी, तो फ्लाई तो आप करके जर्मनी में आपको हॉस्पिटल में आपकी जॉब लग गई तभी आप फ्लाई करेंगे। विदिन 1 month के अंदर प्लेसमेंट ऑफर ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, फिर उससे पहले या उसके बाद? आपकी जॉब आइडियली विदिन 15 days ऑफ योर लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इफ दैट इज योर क्वेश्चन। सर वहाँ की मिनिमम स्टार्टिंग फ्रेशर्स की कितनी होती है? सॉरी, सैलरी सर वहाँ की सैलरी इज 2,70,000 से लेकर 3,30,000 से 3,50,000 तक भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। सर वहाँ Manas, I think somebody is trying to ask a question. Manas, can you ask a question? Hello. Yes, hi, Yes, Manas. sir. Yes, hello, sir. Sir, I'm asking to you, like, if I after giving you 75,000 and I'm unable to clear my B2 in my first attempt, then will you help me to do language Yes, language or yes, not? yes. Assistance is provided as long as you are willing to learn German language. Okay, sir. And sir, one thing more which I want to ask you, that in this salary, 2,700 euros, how much they will deduct taxes from our basic salary? Yeah.
Yes, so for that question, Manas, I think it is a very elaborate answer to that. So I will request you to contact your Spock or the WhatsApp number which I had shown you. So you can ask all those details to you. They will be getting back to you on that. And what about the German language examination fees? Will you pay for first attempt or will you pay for my second attempt as well if I'm unable to clear in my first attempt? So, B2 language. so German language fees, which is the Goethe test or TELC test, has to be paid by the candidate only. And if you clear in first attempt, then employer will refund you. We will not refund you. Employer refunds you the money. Wait, sir. And If I if you will do not clear clear in my- the first attempt, then you have to pay for every time of for every attempt. If I will clear in my second attempt, okay, sir. So will you reimburse my first? No. So the contract clearly states between you and the employer. The contract clearly states if you clear in the first attempt, then the money gets refunded back to you. Otherwise not. Okay. Otherwise not. Yeah. Thank you. सर ये कितना % चांस है कि लैंग्वेज सीखने के बाद में हम जर्मनी जा सकते हैं? तो लैंग्वेज अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 100% चांस है कि आप जा सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज B2 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अदर कंट्रीज में इतना चांस है नहीं अभी सर, है ना? अदर कंट्रीज में अभी विक्रम, आई थिंक आपको पता ही है कि यूएस थोड़े स्ट्रिंजेंट हो गए हैं लॉज वहाँ पे। कनाडा में इमिग्रेंट्स को आई थिंक दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीमोर। यूके में आईएलटीएस स्कोर बहुत बढ़ा दिया है, एंड दुबई और यूएई जैसी कंट्रीज में आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है वहाँ पे। So ideally, Germany is only the country which is left with a permanent solution for Indians, kind of work there for a long time. ओके सर, अभी डिमांड है इसलिए ना सर अभी? Yes, yes. So 5 lakh nurses की shortage है अभी currently, nurses की। सर क्या आपकी एजेंसी से मतलब कैंडिडेट को जर्मनी अप्लाई कर चुके हैं? Sorry. आपकी जर्मनी से कुछ कैंडिडेट पहले जर्मनी हमारे एम्प्लॉयर पार्टनर्स के थ्रू, since हमारे employers जो हैं, they've been working in India for the past 7-8 years. So उनके through lot of nurses have gone through over the past 5-7 years. A lot of can we see and meet the candidate? Definitely. So you can ask the Spock. They will get back to you with the details. Thank you so much. I think in case you have further questions, guys, you can definitely reach out to your Spock. You can also reach out to the WhatsApp number which I had given in the presentation, and feel free. And I would just request you, key takeaways from the presentation were you need to ask questions before trusting anybody, right? Ask as many questions as possible so that you do not land in wrong hands. That is the worst thing which you can do. I would just request you, if you are spending money, spend it the right direction. Right? Thank you so much for your time, guys. Thank you so much for attending this webinar. Thank you, sir. Keep on conducting these webinars for you guys. Hello, sir. Thank you. Thank you, guys. Bye. Thank you, sir.